Okay, so let's start with today's session. ठीक है. Okay, what it says, f be a non-negative function defined on this particular interval 0 to 1. ठीक है, ये इंटरवल है आपका, मतलब ये आपका x का वैल्यू है 0 to 1 डिफाइंड इन दिस इंटरवल. ओके, उसके बाद बोला है समथिंग इज गिवन लाइक दिस, ऐसा कुछ दिया हुआ है, f of 0 भी 1 दिया है, बोला है कि ये सब फाइंड करना है अपने को. थोड़ा ना फंक्शन शायद लाना पड़ेगा, उसके बिना शायद f of 0 is 0 sir. f of 0 is 0. या मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला क्या? आपने 1 बोला. स्लिप ऑफ टंग, माफ करना है यार तू यार. यार आई थॉट कुछ करेक्शन होगा इसलिए पूछा. ठीक है ठीक है ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड. एक काम करते हैं किड्स, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं. सॉरी या हमने इसको डेरिवेटिव करते हैं. किसको? हम इसको डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड्स पे. तो लिबनिट्ज में अप्लाई करूंगा यहाँ पर लिबनिट्ज. So if I apply Leibniz, what I'll get? I'll get under root of 1 minus f dash of x the whole square. चलेगा? पहले x पुट करेंगे, फिर x का डेरिवेटिव माइनस, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 0 का डेरिवेटिव. इज इट ओके? यस सर. और यहां पर आ जाएगा f of x. आई होप ये चलेगा. हाँ बिल्कुल. Okay, so what I get here is 1 minus, okay, f dash का square is equal to f square. Is it okay? Yes sir. ठीक है, so I get f dash का square is equal to 1 minus f square. Is it okay? Yes sir. So your f dash can be written as plus minus under root of 1 minus f का square. Is it okay? Yes sir. So I'll write this as f dash upon under root of 1 minus f का square equal to plus minus 1. Is it okay? Or is it okay? Yes sir. Yes sir. Yes. Now if I take integration, तो ऊपर आ गया f dash of x, नीचे आएगा under root of 1 minus f of x the whole square dx, और यहाँ पर आ जाएगा plus minus integration of 1 dx plus c. Did you get me? Yes sir. Now help me out. कोई बताएगा इसका आंसर क्या है डायरेक्टली? log. क्या आंसर है? Can I put f of x as t? Can I put f of x as t? Yes sir. या कुछ Yes, भी sir. पुट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या? हाँ तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. हाँ के नहीं? हाँ. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर? Log mod of 1 minus t square. Under root of 1 minus t. I am saying what is the integration of 1 upon under root of 1 minus x square? Oh sorry. Sin inverse of x. Sir. Tan inverse of it. Tan inverse of x. Sin inverse of x. Yes sir. Sir log x plus under. Log x. अरे log x कहाँ से आएगा? Sin Sir inverse. log 1. तो sin Tan inverse of x ना? Sorry sir. Sin. Yes sir. ए हाँ ना? हाँ. तो यहाँ पर sin inverse of t आ जाएगा and t is f of x. So can I write the directly answer as sin inverse of f of x is equal to plus minus x plus c. Will that do? हाँ. Will that do? हाँ. So वो c क्यों आया when we took integration? अरे of course ना, plus c तो लगाना पड़ता है ना हमेशा. Constant Constant है ना? Yes sir. Yes. Sorry? Required sir. चलेगा ना? Yes. ओके, अभी हमें सी ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पर सी कैसे ढूंढेंगे? अरे थैंक्स टू द डेटा, थैंक्स टू द डेटा, विच डेटा, विच डेटा. F of 0 is 0. हाँ, सो एफ ऑफ 0 0 ना, तो पुट एक्स एज 0. बिल्कुल. तो गेट साइन इनवर्स ऑफ ना एफ ऑफ 0 is 0 plus c. Getting me kids? Now, f of 0 is what? 0. And sin inverse of 0 is 0. So I get c as how much? 0 sir. 0. So I have got here, what I have got? I have got sin inverse of f of x is equal to plus minus x. Will that do? Yes sir. So So automatically my f of x will become sine of plus minus x. So automatically, finally, I can write my f of x as plus minus sine x. Will that do?
Yes sir. But already something is mentioned. Function is non-negative. लिखा है क्या? Yes. इसके ऊपर. Yes, sir. I can say Yes sir. since function is non-negative, so automatically I can say my f of x has to be plus sin x. Do you agree? Yes. Or is it okay? Yes sir. Yes sir. Very nice. अब मजा करते हैं मजा. लिखा है f of x लेस देन. तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आई थिंक मैंने एक चीज सिखाई होगी. अगर याद नहीं तो बता देता हूं मैं. आपको याद होना चाहिए. X is always greater than. अरे वाह शौर्य यार, तू तेरे को खुश कर दिया यार तू यार. शौर्य यार, वेरी गुड. दिस इज x and your sin x is just like this, you know. Is it okay? So हमें क्या पता है? What do we know? When x, पता है कि नहीं पता? Always Yes, x. sir. In this case, you're always x से बड़ा x y equal to x से बड़ा tan x होता है. yeah. If x is greater than 0, then of course your x will be greater than sin x. Do you agree? Yes sir. So अभी ऑप्शन देख लो फटाफट. ओके आपका sin x क्या है? sin x आपका f of x है. तो I can write here x is greater than f of x. Is it okay? C answer. Yes sir. तो what I get आंसर में 1/2 और 1/3 है. तो I can say f of 1/2 will be less than half and f of 1/3 will also be less than 1/3. Is it clear? So, Yes. What is the answer finally? C. Option C is the answer. Is it clear? Yes sir. Okay, ये सिंगल आंसर टाइप ही था. ठीक है, हाँ sir. चलो अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. चलो. दिस वाज क्वेश्चन. कितना मस्त प्रॉब्लम था ना ये. हाँ sir. Yes. चलो So आगे you have to know the value of sin inverse of x. yes. ठीक है ना. हाँ sir. Let's go to the next one. Number 10. Okay. F dash of x is given 192 x cube upon 2 plus sin raised to 4 pi x for all x belonging to real number. ये given है. उसके बाद f of half उन्होंने 0 दिया तो शायद वो काम आएगा. और ये डेटा given है. हाँ sir. Then they are saying what are the possible values of m and n? m and n का क्या values हो सकता है? What are the possible values of m and n? तो ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं. देखो ये आपका जो x, ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ना किड्स, ये हाफ से 1 तक जा रहा है. डू यू एग्री? हाँ sir. Yes, sir. तो अगर ये हाफ से 1 तक जाएगा तो कैन आई से कि ये जो f डैश ऑफ x है, हाँ. ध्यान से देखना, f डैश ऑफ x एक्चुअली यहाँ पर क्या है? 192x क्यूब upon 2 plus sin raised to 4 pi x. Basically ये आपका f dash of x given है. Is it okay? है ना? Yes, sir. तो मैं एक काम करता हूँ किड्स, मैं चेक करता हूँ f dash of, तो ये इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं उसका वैल्यू में चेक करना चाहता हूँ क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैन आई से माय f dash of x will always be between, मैं हाफ पुट करके एक बार चेक करता हूं. अगर मैंने हाफ पुट किया यहाँ पर x के बदले, अगर हाफ पुट किया तो sin 90 हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. sin 90 कितना होता है? 1. तो 2 plus 1 कितना हो गया? 3. 3. व्हाट इज नाउ 192 upon 3? 64. हाँ sir. हाँ. तो 64 x क्यूब. तो f dash x का जो मिनिमम वैल्यू ये हो सकता है. f dash x की बात कर रहा हूं मैं खाली. Sir, f dash of x will be 8 now. If you're putting half, then I'm putting x is half now. So x cube also you'll put now. So it will become 1/8. हाँ, तो कितना आ रहा है वहां पर? वहां वही हो ना. 8 sir. No, what I'm, you know, actually, see, मैं करके आप समझो, मैं सिर्फ खाली क्या कर रहा हूँ पता है, मैं एक फंक्शन लाना चाहता हूँ, मैं इसको हटाना चाहता हूँ और कुछ नहीं. Sir, so you are eliminating sin. I'm just trying to eliminate sin for my convenience. अच्छा, okay sir. तो समझ रहे क्या कर रहा हूँ मैं x का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली पता करना चाहता हूँ कि अगर sin का वैल्यू अगर मैं गायब करता तो ये कहां तक जाएगा. समझ रहे? Yes, sir. समझ अगर मैंने x को 1 ले लिया तो sin pi हो जाएगा. 0. sin pi 0 हो गया तो 192/2. What is 192/2? 96.
96x क्यूब, क्या चलेगा ऐसा? Yes. ओके तो फिलहाल मैंने ये ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मुझे ना इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये ना इतना गंदा है ना, इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। डू यू एग्री? बिल्कुल। इसके लिए मैंने साइन को हटाया, जिससे एटलीस्ट मुझको रेंज पता चलता है। डिड इट मेक सेंस? हाँ जी। है ना? और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, है ना? हाँ तो मैंने इसे चेक कर लिया उसका वैल्यूज क्या, कहां से कहां तक घूमने वाला है। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब ना काम करते हैं, हम ना इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना एक काम कर लेता हूं मैं, लेट मी इंटीग्रेट इट फ्रॉम मिनिमम वैल्यू हाफ है ना, इसका मिनिमम वैल्यू हाफ है, और मैं ना ऊपर एक्स ही लिखता हूं, बाद में 1 लिखेंगे, पर पहले मैं इसको ऐसे कर रहा हूं। ओके ये dx है, ठीक है। यहां पर भी आएगा हाफ टू एक्स, ये आपका हो गया एफ डैश ऑफ एक्स dx। यहां पर भी आएगा इंटीग्रेशन हाफ टू एक्स, यहां पर भी आ जाएगा 90x x क्यूब dx। डज दैट मेक सेंस? तो फिलहाल मैंने x लिखा है। अब आप बोलोगे सर आपने x क्यों लिखा है? क्योंकि कितना मुझे f ऑफ x लाना है। डज दैट मेक सेंस? मुझे f ऑफ x लाना है, तो मैं अगर वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू ऊपर लिखूंगा तो मुझे वैल्यू फंक्शन नहीं मिलेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 64 x to 4/4 from half to x. Is it okay? So then you can put x as 1 and then get the answer. रुकना भाई, मैं करता हूँ। चिल भाई, हाँ रुक जा। सर। Can I go ahead? Yes, sir. हाँ बिल्कुल। हाँ, सिमिलरली यहां पर आएगा f of x half to x। सिमिलरली यहां पर आएगा 96, यहां पर आ जाएगा x to 4/4 half to x। Does that make sense? चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब मैं काम करता हूँ, ये 4 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 16 आएगा, तो लेट मी जस्ट डू इट। दिस गोज टू 16, तो 16 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा पता है? आई गेट हियर x raised to 4 minus half, that is half raised to 4, that is 1/16। Does that make sense? 16 बाहर निकाल लिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पर आएगा x के बदले f of x minus f of half आ जाएगा। Is it okay? Is it okay? Yes. And this will go with what? This will go with what, kids? 24, right? Yes, sir. 24 x raised to 4 minus 1/16। I hope ये सही है, 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 16 x raised to 4 minus 1 less than equal to, f of half है क्या मेरे पास? Yes, 0. हाँ आप समझा? यूज हुआ ना? हाँ मस्त फंक्शन मिल गया, सुंदर सा फंक्शन मिल गया आपको। बिल्कुल। ये हो जाएगा 3/2। इज इट ओके? अभी हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? हाफ से 1 करना है ना? Yes, sir. हाँ So I'll say integrate कहां से कहां? From half to 1। Can I do it here? हाँ कर लो। Yes, sir. So I'll just write it, integration half to 1, ये क्या है? 16x raised to 4 minus 1। यहां पर इंटीग्रेशन half to 1 f of x, और यहां पर इंटीग्रेशन half to 1 ये है 24x क्यूब। चेक कर लो यार, 24 x क्यूब नहीं, x is to 4, x is to 4, सॉरी इट्स x is to 4। ये कांक्षी क्लास में है क्या? -3/2। Cool. Okay, kids. Now I think it is clear. Can I solve this part? Yes, sir. This is 16x is to 5/5 minus x from half to 1. This integration half to 1 f of x dx, और यहां पर आएगा, ओके यहां पर भी सॉल्व कर लेते हैं ना इसको यार, ठीक है। 24/5 x 5 minus x is to 3/2. 5/5 minus 3/2 x। Hey, getting me, kids? Yes, sir. Okay, तो ये हमें मिल जाएगा। Is it okay? Now can you put upper limit and the lower limit? क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मेरे को जो आंसर मिलेगा आपको बता देता हूँ। I'll get 26/10। सॉल्व मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक ऑफ कोर्स करना पड़ेगा आपको एग्जाम में। और यहाँ से हमें जो आंसर मिलता है वो है 78/20।
अपना ध्यान से देखो किड्स. Of course, this is around 2.6. Do you agree? बिल्कुल. Around 2.6 हो जाएगा. और ये कितना होगा किड्स? क्या, ये भी 2 point something होगा ना? 3.9. 3.9 या 29. 3.9. अब किड्स देखो हमें जो आंसर मिला है और ऐसा आंसर होगा नहीं है बाय द वे, आप चेक कर लो. बोला है देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एन एन. ट्राई अंडरस्टैंडिंग द पॉसिबल वैल्यूज. तो आप ही मुझे बता दो आंसर. देखो आपका आंसर आपको दिख रहा है, आपके सामने देख लो. 2.6 and 3.9. What should be the possible answer? D. Of course, D should possible answer. हाँ के नहीं? ये Yes. पॉसिबल नहीं है. डू एग्री? ये भी पॉसिबल नहीं है. ये भी पॉसिबल नहीं है. दिस कैन बी द पॉसिबल आंसर, है ना? यस सर. तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, लेकिन एक रेंज मिल जाता है जिससे हमें आइडिया लगाना है कि एम और एन, एम और कैपिटल एम का रेंज क्या हो सकता है. हाँ सर. So these two values that we have Yes, got, sir. 2.6 and 3.9 are between this. Is it okay? हाँ सर. Okay, so you have got the answer. Okay, मैं आपको और एक बात बताता हूँ. किसी कभी कभी पता है क्या होता है, जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अजीब और यूनिक होते हैं और वो काफी प्रैक्टिस से ही आता है. वो है कि अगर आप कुछ प्रीवियस क्वेश्चन रेगुलरली सॉल्व करोगे तो शायद आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व होता है. पहली बात तो ये थी, ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों था. देखो सबसे पहले मैंने क्या शुरुआत की, मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए था. अगर एफ ऑफ एक्स चाहिए तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इतना क्लियर था कि नहीं क्लियर था? हाँ सर. लेकिन क्या है कि अगर वो रेंज में अगर हम चल रहे हैं तो मुझे एफ डैश ऑफ एक्स का एक रफ रेंज चाहिए था. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ. अब मैंने क्या सोचा कि x का वैल्यू हाफ और 1 से जा रहा है, तो क्यों ना मैं एफ डैश ऑफ एक्स का रेंज पता कर लेता हाफ और 1 के बीच में. इसके लिए मैंने वैल्यू पुट किया. डिड दैट मेक सेंस द इनिशियल स्टेप? Yeah, sir. Yes, sir. उसके बाद मैंने इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बिना मुझे एफ ऑफ एक्स मिलने वाला नहीं है. बट आई कांट पुट द अपर लिमिट एज 1 बिकॉज मुझे एक्चुअली एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो है ना, एफ डैश ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मुझे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल चाहिए. डज दैट मेक सेंस? Yes. Yes, sir. That's why I'm putting upper limit as x. Does that make sense? बिल्कुल. And then when we integrated thanks to f of half, which was actually 0, and then I integrate from half to 1, which automatically gives me the answer. Is it Fine. clear, kids? Yes, sir. Good. So, in the initial step, Yeah. so 64x cube that step. Why Yeah. don't we just put x as half out? Like our life will become easy in further calculations. No? Okay. Here you want to put x as half here, Yes, sir. but I'm not concerned with f dash of x, no? हाँ. No, so but then when you integrate, you'll get x and x square. So like your calculation will become a little easy. No? What is saying? How, what I'll get? After integration, you will get x and then x square. Okay. Correct. After integration, I'll get x and x square. You're saying? Yes, sir. Okay. So what you are telling me is that I should put x as half here, right? Yes, sir. Okay, so I'll just show it to you what happens. Okay, so you're saying I should put x as half. So half raised to क्या है वो? Half का cube. Half का cube क्या होता है? 1/8. 1/8. 1/8, sir. F dash of x. Okay. उसके बाद what I got here? X के बदले 1. 96/8. I got 96, right? Yes, है ना? 96/8. So I got here 8 less than equal to f dash of x Less than equal to. less than equal to 90. That's what you're saying, right? Sir, x cube there. So also. by 8, na, so then that will get that. एक मिनट. No, There's I'm 96x cube. but x cube is x is 1, no? The lower limit is half and the upper limit is 1. Uh-huh. ठीक है ना? Yes, sir. उसके बाद I integrate this, right? So I Yes. get 8x. Integrate from where to where? From half to x. From half to 1. Is it okay? Is it So okay? x. Half to x. And here also half to x, right? Yes. So I get f of x minus f of half. Is it okay? Yes, sir. Yes. And I get here 96x from half to x. Is it okay? Yes. I'm just doing I'm just doing your method. Huh? So 8x minus half, that is 4. Is it okay? Yes. F of half is 0. So I get 96x minus 48. Is it okay? हाँ. Yes. And then I integrate from where to where? From Half to 1. After 1. Half to 1. half to 1, right?
I'm integrating from half to 1. Okay. Okay, I'll just do it in the next slide. Okay. So when I integrate from half to 1, I get 8x square by 2 minus 4x from half to 1. Is it okay? Yes. Now this is half to 1 f of x dx, and this will be what? 96 x square by 2, x square by 2. Okay. 96 x square by 2 minus 48x. ठीक है ना? Yes. From half to 1. So if I put the upper limit, I get here, put here, what I get here? 8, 4 1 by minus 2. 4, 0. क्या आ रहा है आंसर? 4 minus 4, 0. 2. 0 minus 0 ना? ये आपका 4 चला जाएगा. So when I put half, 1 by Minus 2. 4, I get what? Minus. Minus 2. So plus 2. क्या हो ठीक है ना? So minus minus हो जाएगा. Plus 2. Yeah, plus 2. Plus 2. Plus 2, right? And then what I get here? 48x square 0. So 0 minus minus 48x है ना? So I'll just write it directly. minus. Yeah. So I'll get here, I'll put 1, so I'll get 0, right? Minus of, I'll put 48 है. 12 minus 24. 48 है, ये half का square, तो 1 by 4 हो जाएगा. चलेगा ना? Minus 24. Is it okay? I get 2 less than equal Yes, to this question itself. Less than equal to what I get here? How much? 12. I get? 12. Is it okay? 12 only. Check Yeah, कर लेते that's हैं. the answer. Check कर लेते हैं. So, Yeah? so can you go to the previous slide? Yeah, I'm going to previous slide only. Wait. So I have got here 2 to how much? 12, no? Yes. 1 minute, yeah. So that should be 1, no, instead of Yes, it should be 1. Where? So, So 1 to so 12. so because 4x square minus 4x, when you put half, it will be It's 1 4. minus 2. This one you're saying? Yes, so it should be 0 minus of Yeah, minus 1. yes, sir. 1. 1 minute. I'll just change it. Wait a minute, I'll just do it. Yeah. So when I put the upper limit, I'll get 0 minus. Minus When I put the lower limit, I get 1 by 2. That is 1 minus 2. Minus 2. 2. So I get the answer as 1. Is it okay? Yes, sir. Yeah, this is a very good method. I never tried this one. We got the answer, no? In fact, we got the exact answer, right? Yeah. Oh, it's a very good What method. exact? Yeah. But the only thing is what, why I avoided writing straight away, because this is a very, very, what you have done here, यहाँ देखना, प्रेम, Yes, sir. मैं ये मेथड मैंने क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन ये था कि नॉर्मली क्या होता है, हम जब कोई फंक्शन में डील करते हैं ना, तो हम हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम फंक्शन में डील कर रहे हैं, और क्योंकि मुझे यहां से एफ ऑफ एक्स चाहिए था ना, इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा था. यहां पर ये सब हो गया क्योंकि यहां पर हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए था शायद, इसलिए इट वर्कड आउट. बट not to be done always, but yeah, this is a very good method wherein you just did nothing much, you just plugged in the value here as just plugged in the value as x as what, half and 1, and automatically आपको यहाँ से एक range मिल गया f dash of x. Is it clear? हाँ सर. क्योंकि हम range में deal कर रहे हैं, इसके वजह से शायद यहाँ पर ये आंसर आ गया आपको. Is it okay? So I think I have no problem with this sum. This is a very good method, but if you follow this method for some more problems, if you go to the previous question, there are some similar problems wherein if you just follow this method, you may land up getting wrong answer. That's why I personally never follow this particular method. But yes, Prem, इस particular problem के लिए okay है. Is it okay? Yes. Okay, Prem, one more thing I can tell you. What you did of putting the values was a very elementary way, because ये बहुत natural है किसी के लिए सोचना कि मैं x को put कर देता हूं, समझ रहे हैं? Yes. है ना? It was so obvious for me not to just put the value and get the answer and just keep integrating it. But yes, this will not work for majority of the problems. This much I can guarantee give you. That's why I was avoiding getting the absolute values. Is it clear? Is it Yes. clear? But yes, for this problem specifically, your method is absolutely correct. Is it okay? So where could we use this? मतलब Okay. Now देखो, पहली बात, मैं कभी ये मेथड फॉलो नहीं करता और ना ही कभी करूंगा. अच्छा. तुम्हें पता है क्या होता है आर्यन,
मैं क्यों नहीं ये सब मेथड फॉलो करता हूँ, क्योंकि देख यार कैसे होता है पता है, जो मेंस के जो एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ना क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया है ना, अब ये जो स्टेप जो मुझे अपने प्रेम ने बताया ना, वो बहुत ही ऑब्वियस था. क्या ऑब्वियस था? हाफ और वन दिया, मैं हाफ और वन को पुट कर देता हूँ. Isn't that so obvious? अच्छा, okay. So they want the student to do it that way. हाँ, they want the kid to do that. अब हो क्या गया है यहाँ पर एक्चुअली आपको आंसर मिल गया है, समझा? Okay. So let's be safer side. We It do is, it this oh way. yes, so to be on the safer side, always never get the absolute value, rather go to the function and go ahead, because this will work for majority of the problem, but this method work for only few problems. So this category of problem is like x is given and some function is given, like trigo Yes. or Yes. log or something like that. So हाँ. one you eliminate, हाँ. and other one you keep solving and get the answer. That way. हाँ, this method which I did is absolutely correct for majority of the problems in definite. Is it okay? Is it okay, Hriday? Yes, sir. Okay, you come to the third slide. So, Yeah. I have a question. So, Yeah, tell me. so it's on the previous slide. Yeah, Hriday, tell me. So it's on the previous slide. Yeah. So yes, sir. So Yeah. when we put x cube for 64x cube and 96x cube, when we put x as half, Yeah. so below that first step on the red color, so third step, so that would not make sense, no, putting half, because f of half minus f of half, it will become. No. Here I'm not putting half. Here I'm putting one only. Okay, sir. Now I have put the lower limit as half and the upper limit as one. Does it make sense? Okay, sir. Yeah, okay, sir. Is it clear? So what we Yes, put in sign, that only you putting in x that way. Yes. ठीक है ना? Okay, sir. प्रेम, is it clear? Yes, sir. ओके और एक बार बताता हूं मैं, एडवांस में काफी बार ऐसा होगा किड्स, कोई क्वेश्चन ना शायद आपके जो टिपिकल ट्रिक से सॉल्व हो सकता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं होगा ऐसा कभी. इज इट ओके? कैन आई गो अहेड? या चलो, बिल्कुल चलो. बढ़िया, यहां पर हो गया, बहुत अच्छी बात है. मैंने कभी ट्राई नहीं किया था बाय द वे ऐसे. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो एक मस्त प्रॉब्लम है किड्स, लेट्स रीड इट. f be a real valued function defined on this interval. ओके, आपको इंटरवल दिया है 0 to infinity. इसका मतलब होता है आपको जो x का वैल्यू है, इट इज फ्रॉम 0 to infinity. और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है. और क्या बोल रहे, पढ़ लेते हैं. ओके, लेट मी चेक ना, आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए यहाँ पर. फंक्शन f डबल डैश में, हाँ f, हाँ यहाँ पर एक करेक्शन, एक मिनट, यहाँ पर है f of x and f dash of x करेक्शन, ठीक है. चलो चालू करते हैं काम. क्या लिखा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ये भी ये है ना, मोर देन वन टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है. तो हम इसको देखते, क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले. योर f of x is what? f of x is log of x to the base e. ये आपका 0 to x है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x dx. dx, ये dt कहां से आ गया? No, we can use our Leibniz. Yeah, sorry. It is sin t dt. I made a mistake. So there's only one So- correction, na? Yeah, sin t dt. Is it okay? So I had a question. Yeah, tell me. In these type, suppose there is log, natural log. Then Yeah. can we make it 2.303? We can use that in maths What 2.303? to convert it to the base 10 log. But why should I convert? No, if you are going derivative or something. You can do anything at any point of time, but yeah, I will not do that here, obviously. ठीक है? Yeah. But what will be the use of that, sir? कुछ फायदा नहीं है, बोल रहा हूँ ना मैं. चालू करो मैं. So here there's only one correction, na, in option D. Yeah, option D में correction. बाकी कहीं correction नहीं. log x का डेरिवेटिव इज 1 by x. यहां पर हमें लिबनिट्ज करना पड़ेगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो आई विल पुट इन प्लेस ऑफ t, आई विल पुट x into x का डेरिवेटिव माइनस 0 into 0 का डेरिवेटिव. विल दैट डू?
Yes. कूल इसको और एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं हाँ सर. तो आपके 1 upon x का डेरिवेटिव होता है -1 upon x square. Is it okay? Yes. This will be 1 upon 2 root of 1 plus sin x into 1 plus sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. Will that do? हाँ. चलो अभी ऑप्शन देखते हैं. f double dash of exist for all x belonging to 0 to infinity. हाँ. Is it true? चेक करा पड़ेगा. हाँ या ना, क्या लगता है आपको? I feel it is not true. तो 0 to infinity नीचे कभी भी 0 आ सकता है. एक प्रॉब्लम पता है क्या? हाँ. देखो देखो Sin. यहां पर प्रॉब्लम है ना, Yes sir. क्योंकि अगर अपना x का वैल्यू, अगर सपोज आपका x का वैल्यू, अगर आपका x का वैल्यू सब पाई हो गया. पाई नहीं 2 पाई. नहीं रे बाबा, अगर आपका x का वैल्यू 3 if pi by 2 sorry. x is suppose minus pi by 2 और 3 pi by 2 और एक्सेट्रा जो भी है, Yes sir. हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ पर माइनस होना आएगा. डू यू एग्री? सब minus pi by 2 नहीं आएगा. ये तो हटा देते, नहीं नहीं ये नहीं आएगा, ये तो मैंने गलत से लिख दिया, मैंने उसको मैं इरेज कर देता हूँ. राधा अगर 3 pi by 2 आ गया, कुछ भी वैल्यू आ गया, 5 pi by 2 आ गया, 5 pi by 2 नहीं, हाँ 3 pi by 2 के बाद सीधा कौन आएगा? क्या 5 pi by 2 नहीं, 5 by 2 7 pi by 7 pi by 2 7 pi by 2. 7. तो आप खुद बोलो, अगर यहाँ पर 3 pi by 2 आ गया है, 7 pi by 2, तो क्या हो जाएगा किड्स? 1 by -1. -1 to One 0. minus तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, और ये तो रियल नंबर है ना, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ के नहीं. हाँ. Yes sir. सो ऑप्शन ए गलत है. डू यू एग्री? बिल्कुल. पब्लिक समझा गया? हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. चलो अच्छी बात है. तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया है. अब चलते हैं सेकंड के पास. लेट्स गो टू सेकंड ऑप्शन. तो ये पहला ऑप्शन इज रॉन्ग. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड ऑप्शन. लिखा है f dash may exist for all x belonging to 0 to infinity. या 0 तो आने वाला है नहीं, यहां भी सब चलेगा. हाँ चलेगा. Isn't that चलेगा? Yes sir. So, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. डू यू एग्री? Yeah, because max value of sin is 1, so सब चलेगा, सब चलेगा. डू यू एग्री? yes sir. Yes, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. 0 से ज्यादा तो हो ही सकता है. डू यू एग्री? बिल्कुल. ये वाला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है. So दूसरा infinity negative infinity to infinity हो सकता है. क्या हुआ? नहीं except 0 all values will be possible ना. Yes, Because, yes. sin lowest is -1. Yes, Aryan, very good, Aryan, very good. हाँ आगे. f dash is continuous. Yes, ये फंक्शन कंटिन्यूस है फ्रॉम 0 to infinity, क्योंकि ये कंटिन्यूस है क्या नहीं? अरे हाँ क्या नहीं? Yes Yes. sir. और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है 0 to infinity बीच में. डू यू एग्री? तो ये वाला स्ट्रेट सही है. दूसरा, बट नॉट डिफरेंशिएबल. f डैश डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब f डबल डैश ऑफ x डिफरेंशिएबल, मतलब f डबल डैश ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 to infinity में कहीं जगह पे. डू यू एग्री? दिस इज राइट. Correct sir. See, f dash is not differentiable मतलब क्या? f dash is not differentiable मतलब क्या? तो मतलब any one point may not exist of f double dash of x. हाँ, अरे क्या यार, अरे स्मार्ट है तू यार, इंग्लिश आता है तेरे को. वेरी गुड. समझा ना? हाँ सर बिल्कुल. वेरी गुड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आर्यन, इज इट ओके? Yes यस sir. सर. ओके. अभी नीचे वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो थोड़ा ना हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा. चलो ऑप्शन सी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. क्या लिखा है पता है? देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1. देखो कभी कभी ना समझने में बहुत मुश्किल होता है ये सब ऑप्शंस, फिर भी देखते हैं. such that mod of f dash x less than mod of f of x for all x belonging to alpha to infinity. ये पहली बात, f dash of x तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा 0 to infinity. डू यू एग्री? yes, sir. देखो 1 0 to infinity 1 by x पॉजिटिव है और अंडर रूट भी पॉजिटिव रहेगा. डू यू एग्री? यस सर. और f of x भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. डू यू एग्री? 0 to infinity में हाँ इन शॉर्ट ये मॉड लिखने की जरूरत नहीं है. डू यू एग्री? Yes sir. Yes sir. हाँ सर. तो मॉड में नहीं लिख रहा हूं. अब क्या करते हैं हम f dash of x को यहाँ लिखते हैं और थोड़ा वार्तालाप करते हैं. f dash of x क्या है? इट इज 1 by x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 plus sin x less than f of x is
log of x plus 0 to x under root of 1 plus sin t dt. अब let's do some वार्तालाप here. Let's have a discussion. हाँ वो क्या बोलता है, अगर आपका अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा है, हाँ तो बोल रहा है कि ये ट्रू है सच दैट फॉर ऑल एक्स. अब किड्स एक देखो, एक बात बताता हूं. डोंट यू थिंक द लेफ्ट हैंड साइड इज स्टैटिक बट राइट हैंड साइड इज डायनेमिक? व्हाई डायनेमिक? फिजिक्स में मत घुस जाना. इसको स्टैटिक क्यों बोला, इसको डायनेमिक क्यों बोला मैंने? One is integration and other doesn't have integration. नहीं शौर्य समझ रहे, समझ, ये जो x है ना, it can change ना. it can change. Do you see? It's variable and Variable. यहाँ वेरिएबल नहीं है, समझ रहा है तेरे को? Yes. बिल्कुल बिल्कुल इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल नहीं है, समझ रहा है तेरे को? हाँ सर जबकि ये वेरिएबल होगी, ये बड़ा वैल्यू बढ़ते जाएगा. डू यू एग्री? बिल्कुल बिल्कुल शौर्य कोठारी, Yes, sir, understood. कृष्ण मेहता, Yes, sir. Yes, sir. देख लेफ्ट हैंड साइड ना स्टैटिक है क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो ये तो फंक्शन वैसे है, ये तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि x बढ़ता जाएगा. डू यू एग्री? So you can do it some other way also. So 1 by x is there, so that value is decreasing only. वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बताना चाहती हूँ, इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन ये क्या है, ये x पता नहीं अपने को, तो x अगर तेरा बढ़ते जाएगा तो वैल्यू भी बढ़ता जाएगा तेरा. डू यू एग्री? Yes, sir. पर ये वाला वैल्यू तो काइंड ऑफ स्टैटिक ही है क्योंकि ये फंक्शन ही है पूरा खाली, जबकि फंक्शन बना नहीं है अभी तक. समझ रहा है? हाँ 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 सर तो लेफ्ट हैंड साइड स्टैटिक है जबकि राइट हैंड साइड डायनेमिक है. डू यू एग्री? यस सर तो अगर मैं अल्फा को सपोज 2 लेता हूं, सपोज, ओके, तो आपका x 2 और इन्फिनिटी के बीच में. डू यू एग्री? Yes, sir. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने अल्फा को 2 ले लिया तो आपका x 2 और इन्फिनिटी के बीच में. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से कुछ वैल्यू मिलेगा, जबकि यहां पर वैल्यू x बढ़ता जाएगा क्योंकि x का वैल्यू देखो 2 से इन्फिनिटी चलता ही जा रहा है. समझ रहे हैं क्या? तो इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा कंपेयर टू दिस. डू यू एग्री? यस सर So for all x it is true. Do you agree? Yes, sir. बिल्कुल हाँ, या So, शौर्य. but मुझे sir here इसका जो value है ना 1 plus sin t हाँ. right hand side वाला हाँ, integration 0 to x. सर हाँ. इसका value start कहाँ से होगा? इसका वैल्यू समझो x 1 पुट करे तो इसका value approximately क्या हो सकता है? सी, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है. बाय द वे, So because see log x is negative at that time, sir. log x is Negative at that time. at what time? Sir x equal to 1. x1 पे log नेगेटिव, हाँ, log 1 to the base e की बात कर रहा है ना तू? हाँ. हाँ, So वो तो negative ही होगा ना? क्या नेगेटिव होगा? 0. Sir log x to the base e. अरे log 1 का वैल्यू क्या होता है? Sir. 0 आर्यन, हाँ, समझा sir. Yes sir, yes sir. So, but we cannot put x as 1, no? no, you not put, no, why will I put 1? हाँ, correct. Yeah, it is greater than 1. और दूसरी बात क्या है, अरे बाबा ये एरिया है रे, समझ रहा है तेरे को? Yes sir. और ये एरिया बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली. समझ रहा है? राइट साइड. हाँ. इसलिए मैं डायनामिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि तूने x बढ़ा, अगर तू अल्फा बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली एरिया बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली. डू यू एग्री? Yes sir. जबकि लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ बढ़ता ही नहीं है, वो तो फिक्स है खाली. समझ रहे हैं? हाँ, okay. That's why it is true. This option is correct. Does that make sense? तो this 1 plus sin t dt जो है, हाँ, इसका मतलब कुछ ग्राफ होगा which we can ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली कुछ ग्राफ होगा, पर मुझे वो नहीं पता, पर ग्राफ ऑब्वियसली होगा ना कुछ तो. so we cannot determine it और मतलब क्यों नहीं सॉल्व कर सकते ना उसको? कॉस, अगर तुम्हें इंटीग्रेट आता है तो cos t by 2 plus sin t by 2 तो होल स्क्वायर लिख सकता है उसको, yes sir. और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इसको अपन. हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? yes sir. लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है क्योंकि इंटीग्रेशन है, कि अपने को पता नहीं x का वैल्यू क्या होगा. अच्छा, okay. So yeah, समझा sir.
हाँ कि नहीं? समझा सर. बिल्कुल बिल्कुल. That is the reason. Is it clear? वेरिएबल है इसलिए कुछ determine Ah, नहीं yes, सकते. yes, हाँ, yes, okay. yes. Understood. That's what is always true for all x between alpha to infinity. Do you agree? Yeah. लेकिन अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखना मजा आएगा. नेक्स्ट वाला तो क्यों मजा आएगा? आप पहले सी को देखो और डी को देखो. सी और डी में क्या फर्क दिख रहा है आपको? फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू अल्फा टू इंफिनिटी लिखा है, जबकि यहां क्या लिखा है? अब मैं ये लिखता हूं, ये ऑप्शन लिखता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, तो आपको समझेगा यहां पर हो क्या रहा है. एफ ऑफ एक्स मॉड प्लस एफ डैश ऑफ एक्स मॉड, यहां पर लेस देन इक्वल टू बीटा है, लेस देन इक्वल टू बीटा, और क्या लिखा? देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन जीरो. देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन जीरो such that this should work for all x, for all x belonging to 0 to infinity लिखा है इस बार. Do you see this? अब प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है यहां पर. ये हमेशा ट्रू नहीं हो पाएगा. बोलो क्यों? क्योंकि वापस देखना, ये फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? एक स्टैटिक फंक्शन है, हाँ कि नहीं? जबकि आपका एफ डैश ऑफ एक्स एक डायनेमिक फंक्शन है. डू यू एग्री? अब हो क्या रहा है यहां पर? हो ये रहा है बीटा ग्रेटर देन जीरो बोले, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? यस सर. तो मैंने बीटा को 1 ले लिया सपोज. हाँ. अब हो क्या रहा है यहां पर? विल दिस बी ट्रू फॉर ऑल एक्स? यस कि नो? नो. So is beta fixed or is beta variable, sir? बीटा तो फिक्स है यहां पर. So then it is not possible. नॉट पॉसिबल ओनली. अरे देखो, आपको समझना पड़ेगा प्रीवियस ऑप्शन में क्या दिया था. देखो, अल्फा ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा टू इंफिनिटी दिया है. So in all conditions it will not satisfy. मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, but पक्का all नहीं बोल सकता. ऑल नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि यहां पर ना प्रॉब्लम. हाँ, अगर यहां पर बीटा टू इंफिनिटी दिया होता, अगर यहां पर बीटा टू इंफिनिटी दिया होता तो ये हो जाता. हाँ. या makes sense. बिल्कुल सही है, सही है. So how beta to infinity समझा नहीं. क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये फॉर ऑल एक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना वो लोग यहां पर. हाँ. तो यहां पर ये जो वैल्यू है 0 टू इंफिनिटी जो दिख रहा है तेरा, Yes. प्लीज फॉर ऑल एक्स बिलोंग 0 टू इंफिनिटी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ये एक डायनेमिक फंक्शन है. डू यू एग्री? Yes. जबकि एक स्टैटिक फंक्शन है, तब कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर तूने सपोज बीटा को सपोज कुछ ले लिया है, सपोज मैंने बीटा को 3 ले लिया है, बीटा सपोज तेरा 3 फॉर एग्जांपल. आर्यन, So I agree to this. I'm saying जब when you said for all x belonging to beta to infinity, that time हाँ. this will satisfy. वो मैं नहीं समझा. हाँ, अगर तेरा बीटा टू इंफिनिटी है तो तू तेरा एक्स का लिमिटेशन आ गया ना. एक्स का लिमिटेशन कहां से शुरू हो रहा है? बीटा से. तो जैसे तेरा बीटा बढ़ेगा, यहां भी बीटा बढ़ेगा ना तेरा. So is for the second condition that we are talking about, is beta fixed or variable? यहां पर बीटा इज फिक्स्ड. हाँ. अभी x belonging to beta to infinity क्या था? दिस इज वेरिएबल. दिस इज वेरिएबल. अच्छा. Okay. दिस इज वेरिएबल, राइट? हाँ. तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये स्टेटमेंट. व्हाट विच स्टेटमेंट? ऑल एक्स. आर्यन, अच्छा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहां पर फॉर ऑल एक्स के लिए बोला है. हाँ. अगर ये फॉर ऑल एक्स नहीं होता तो मेरे को टेंशन नहीं होता फिर हाँ बोलने के लिए. सब बट बीटा टू इंफिनिटी में, हाँ, बीटा टू इंफिनिटी, बीटा वेरिएबल मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब बीटा वेरिएबल, बट हाँ. बीटा एक बार रख दिया तो हाँ. उसको चेंज नहीं कर सकते ना. और फिर बीटा टू इंफिनिटी लेकिन- में लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी वैल्यू हो सकता है. हाँ, लेफ्ट हैंड का कुछ भी वैल्यू होगा. हाँ. तो ऐसा भी हो सकता है कि बीटा से बड़ा निकल जाए नंबर. हाँ, तू हाँ समझा मैं. तू क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ना कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर हाँ. अगर मैंने बीटा रख दिया तो बीटा मेरा Yeah. फिक्स हो जाता है. हाँ. हाँ, तो यहाँ पर फिर नहीं होगा. यहाँ पर फिर नहीं होगा फिर. लाइक वेरी हाई नंबर देन बीटा, तो देयर कैन बी अ कंडीशन ना. या देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन. यस. So मैंने वो previous C question है ना, हाँ, उसको डेस्मोस पे डाला. हाँ. तो your it is saying f of x is greater than f dash of x, Perfect. but it is
the point they are meeting at is greater than 1. मतलब 1.4 या 1.5. Obviously ना. So for 1.2, when alpha is 1.2, Okay. f of x is still less than f of x. F of x- F of x is less than f dash of x. F For of x 1.2. is greater than f dash of x ना. No, for 1.2 or 1.4 के नीचे Okay. f dash of x is greater. Are you sure? Yes sir, इधर 1.4 पे आ रहा है. But तूने किया क्या पुट किया तूने? I put 1 by x plus under root 1 plus sin x Okay. and natural log x Okay. plus integration 0 to x under Okay. root 1 plus sin t dt. लेकिन तूने कुछ लिमिटेशन डाला x का? No. तो कैसे किया फिर तूने? So when you put 0 to x it comes directly. ऐसे आ गया था. ना. तो screenshot. तू मुझे बाद में भेज देना, बट ऐसा नहीं है. हाँ, okay sir. ठीक है? या हाँ, अरे आर्यन किधर क्या तू? Yes, I'm there. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर पहला तो है, अगर तू यहाँ पर बीटा ले लगा, मैं बीटा टू इन्फिनिटी बोलता हूँ ना, समझ रहा तेरे को? Yes, sir. तो तेरा x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. हाँ. तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये नहीं होगा ट्रू. डू यू एग्री? Yes, sir. हाँ ना? Yeah, because हम जो infinity पे ले Yes, लिया yes, चलो बीटा, yes, yes, but yes, true yes. value उससे भी बड़ा हो सकता है ना. हो सकता है. Yeah. हो सकता है. So, या could you also just take the possibility that the value of x is between 0 and 1 and Value- beta is infinity? वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 0 and 1 ओके. and beta is infinity, for example. सी बीटा को हम इन्फिनिटी नहीं लिख सकते ना. Yeah, even if it's some finite value, it doesn't matter. या Then mod f of x plus mod f dash of x will be some value approaching infinity, या especially if x is very close to 0. दैट्स व्हाई वी स्पीक अबाउट फॉर ऑल ना. Yeah, so that way you can completely disregard the entire thing and say that That's it all. doesn't work That's- for all. Yes, it does not work for all. That's what I am saying, na? Yeah, so instead of talking about like how the function itself works, Yeah, can't yeah. you just take one small range of values that will Yeah. surely like disprove it? Yes. You can do that. Yes. End of the day, you have to interpret this thing rather than क्योंकि यहाँ पर कुछ solve करने जैसा नहीं है. To just think about it. Do you agree? Yes, sir. Okay, ठीक है. चलो. Okay. Can I go ahead? Of course, it was a lot of thinking about this problem, Yeah. but of course, this is not possible. Is it clear? Can I go ahead? Yes, sir. Yes. ओके ठीक है. चलो, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे एक नोट बताना पड़ेगा. कोई एनोटेट कर रहा है क्या पीछे? नहीं सर, कैसे करते हैं पता Sir, नहीं. looks like sir because बहुत सारे like if you go back also some dots and some scratch. या क्योंकि मैं तो एनोटेट नहीं कर रहा. आई थिंक कोई और एनोटेट कर रहा है. रुको, चेक करने दो. मैंने डिसेबल कर दिया है. चलो, कैन आई गो अहेड? कैन आई गो अहेड? ओके. अब किड्स, मुझे एक चीज बतानी है जो आप लोग को पता होनी चाहिए, और वो चीज है क्या? वो है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया होगा, वो है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम. एक मिनट. या लिमिट n approaching infinity summation r equal to 1 to n function of r by n into 1 by n. This can be written as 0 to 1 f of x dx. लास्ट टाइम बताया था मैंने. इज इट ओके? हाँ सर. अब ये एक बहुत ही धांसू प्रॉब्लम था जो एग्जाम में आया था, और अगर सडनली ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो इट इज नॉट इजी टू प्रॉब्लम सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, बट लेट्स गो अहेड. बट हाँ, ये प्रॉब्लम मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिन्होंने इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम सॉल्व किया है तो उनको शायद पता चल ही जाता है कि ये इस पर ही बेस्ड है, क्योंकि समेशन दिख रहा है, लिमिट दिख रहा है. लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी दिख रहा है आप लोग को, हाँ सर. तो ऑटोमेटिक एक फीलिंग तो आ ही जानी चाहिए. ठीक है. ए 2 raised to a प्लस डॉट 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 प्लस n raised to a, यहां पर एक काम करने वाला, ध्यान से देखना. I'll take n को बाहर, हाँ, आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो आई गेट 1 प्लस 1 अपॉन n a minus 1. ये क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा आपके हिसाब से? R by N by- n power.
तो ये आपका वन, हाँ। ये वन हो जाएगा. डू यू एग्री? क्योंकि अगर मैंने n इंफिनिटी पुट किया 1 upon infinity क्या हो जाएगा? 0. 0. सिमिलर मैं n बाहर से कॉमन निकाल रहा हूं. आई गेट a प्लस 1 बाय n, a प्लस 2 बाय n, a plus 3 by n, and this will be a plus n by n. Do you agree? Yes, sir. Cool, 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 cool. Hey kids, आंखें फाड़ फाड़ के देखो आप. ये है 1 raised to a, 2 raised to a, 3 raised to a, dot 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 dot, n raised to a. Hey kids, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं डायरेक्टली so that I don't waste my time writing again and again. Can I say this will become 1? Is it okay? Because अगर आपका n infinity को 1 upon infinity क्या होता है? 0. तो ये 1 हो जाएगा. Is it okay? Yes. So let's not write it down. Now this is a minus 1 and this is n raised to 1. Huh? Yeah, If I so combine them it is n together, raised it to becomes a. n raised to a. Is it okay? अरे is it okay? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर. ठीक है. 2 by n ये चलता रहेगा. आई थिंक आगे का स्टेप मुझे बता सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ. Summation of numerator. ओके देखिए न्यूमरेटर ना ऊपर जाएगा. डू यू एग्री? तो आई कैन राइट दिस एज व्हाट 1 by n whole raised to a, 2 by n whole raised to a, 3 by n whole raised to a. ये चलता रहेगा. लास्ट में आएगा n by n whole raised to a. डू यू एग्री? हाँ हाँ और यहां पर वही ड्रामा है. चलेगा? चलेगा चलेगा. अब किड्स चलो 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 चलो. लिमिट चले. n approach infinity. Kids, can I write this as summation r equal to 1 to n r by n whole raised to a. Do you agree? I agree. Do you agree? I agree. Very good. You should agree. Similarly, here it will be a plus r by n. Is this okay? हाँ सर. This is 1 by 60. और एक काम करते हैं. Divide the numerator and denominator by n. I'll divide by n, numerator and denominator. So I get limit of n approaching infinity. This is 1 by n. Summation r equal to 1 to n. R by n raised to a. R by n raised to a. R by n raised to a. ये लिमिट को हम नीचे भी लेके जा सकते हैं. So limit of n approaching infinity. यहाँ पर आएगा I'm dividing by n. यहाँ पर आएगा summation r equal to 1 to n. ये हो गया आपका a plus r by n आ जाएगा. I hope ये clear है. Yeah, equal to 1 by 60. हाँ हाँ. Hey kids, tell me what is the numerator? 0 to 1 Integration of integration. 0 to 1 x raised to a. Do you agree? हाँ. अरे फंक्शन ऑफ r by n को x लिखते हैं. याद है ना r by n को x लिखते हैं. अरे हाँ क्या नहीं? हाँ बिल्कुल यार सर. इसलिए 0 to 1 ये आपका हो जाएगा a plus x, that is x plus a dx. X dx. Sir. चलेगा? Yes, sir. हाँ. So what I get here x raised to a plus 1 upon a plus 1. हाँ. चलेगा ना? हाँ बिल्कुल. 0 to 1. सिमिलर यहाँ पर आएगा x plus a the whole square by 2 from 0 to 1. So when I put the upper limit, I get 1 upon a plus 1. If I put the upper limit, by the way, if I put lower limit, it becomes 0. Is it okay? Yes sir. If I put the upper limit, I So get. a is a No, constant no. ना, तो why you put x plus a the whole square कहाँ पुट किया मैंने? नीचे? हाँ ना ये कैसे? How do you do x plus 2 का integration? x square by 2 plus 2x. Or else, or what is the other method? Linear Take it term. as a function. and It's a linear ना? It's a linear ना? Linear term. तो क्या करते हैं linear term में अपन? My God. हाँ Take it as and then 1 divided by integration the of coefficient of x. Okay, what is x का integration? X square by 2. x square by 2. अगर x के बदले linear है तो can I do the integration now in the same manner? Yes sir. याद आया सबको? Yes sir. Yes sir. पूछ लिया करो यार. अरे सर. हाँ, can I go ahead? हाँ सर. चलो ठीक है, देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं. मैं इसको लिख लेता हूं.
ओके तो ऊपर राइट है ना, नीचे क्या आएगा पता है, आई पुट a, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस a द होल स्क्वायर बाय 2, I'll put x के बदले 0, so I'll get minus a square by 2. Is it clear? So x equal to 0 जो अपर वाला है वो कहाँ गया? 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा ना पूरा, yes sir. ठीक है ना? So 0 raised to something is defined ना? आर्यन तो क्या बोल रहा है यार? हाँ okay understood sir. ऐसा मत कर यार, हाँ ठीक है ना? yes sir. मैं कुछ अलग सोच रहा था इसलिए। हाँ वो तो मैं समझ ही गया, तू कुछ अलग सोच रहा था, ठीक है। अब हम एक आगे काम करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स जा रहे हैं। आई थिंक कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गड़बड़ ना कर बैठे। ओके तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते क्या आएगा। यहाँ पर यह है 1/a+1 है, यहाँ पर 2 को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, चलेगा? 2 पर जाएगा, चलेगा? हाँ नीचे आएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a स्क्वायर, गेटिंग मी? हाँ सर, आपका a स्क्वायर कैंसिल हो गया, चलेगा ऐसा? कोई बात नहीं सर। हाँ। तो क्या मिल रहा है चेक कर लो, 2 पर आ गया। आई होप ये गलत नहीं कर रहा हूं मैं, या ठीक है। 2 पर आ गया, नीचे आ गया a+1, ये आपका हो गया 2a+1 है ना, 2a+1 इक्वल टू 1/60। इज इट ओके? हाँ सर। So I get here a+1 into 2a+1 is 120. Is it okay? Yes sir. Abhi can I solve this quadratic? Can I solve the quadratic? Yes, you could sir. Okay, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा है। I don't know क्या आंसर आ रहा है यार। हाँ तो यहाँ से आपको है ना a का वैल्यू आएगा 7, या तो a का वैल्यू आएगा -17/2। ये दो आंसर्स आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। आपका आंसर देखो 7 भी है, -17/2 भी है ना, ऑप्शन दोनों दिए हैं, लेकिन पता है कि आपके बुक में तो दोनों आंसर दिए, बी और डी दिया है बुक में, बट मेरे हिसाब से बी और डी नहीं है, खाली बी है। डी क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से बुक में बी और डी दिया है बाय द वे, बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से डी नहीं होना चाहिए। डी क्यों नहीं होना चाहिए? देखो डी क्यों नहीं हो सकता, बताता हूं मैं आपको। कोई बताएगा डी क्यों नहीं होना चाहिए? सी आंसर वी आर गेटिंग इज बी एंड डी, एंड व्हेन द बुक इज सेइंग बी एंड डी, बाय द वे बुक में भी बी और डी दिया है, तो नेगेटिव साइन आएगा। देखो ए नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव? देखो अगर ए नेगेटिव हो गया ना, अगर ए तो नेगेटिव हो नीचे गया, का टर्म नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ तो इंफिनिटी हो जाएगा पूरा। डू यू सी, अगर तेरा ए नेगेटिव हो गया ना, हाँ यस सर, लफड़ा हो जाएगा ना। अगर ए नेगेटिव हो गया तो डू यू सी दिस, सब ऊपर चला जाएगा। डू यू सी दिस? Yes sir. हाँ। That तो n लफड़ा will होगा ना? also go up sir. हाँ, this will also go up. Do you agree? Yes sir. Yes, Go sir. infinity into something. Yeah. So as per me, option D is not possible. Even though bookmate is given, answer has to be only option B. It should only be positive. Do you agree? Then only this will make sense. Do you agree? हाँ yes sir. So we can The say denominator will also be zero, negative ना, and the हाँ, तो- answer is positive. तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। that. So we can say that the LHS will become infinite, whereas RHS is finite. तो प्रॉब्लम हो जाएगा जो भी है। That's what. Yeah. इज इट ओके? Yes. sir. और आपका RHS पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको? समझ रहा है ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो किसी भी तरीके से आप सोचो, क्योंकि इंफिनिटी वाला प्रॉब्लम है, इसलिए आपका जो इंडेक्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। डू यू एग्री? Yes sir. Yes sir. चलो So अच्छी if बात। this is given in multiple choice, Yeah, it's a it will multiple mark choice. only 7. Yeah, only B is answer. Yeah. See, multiple choice does not mean there can be more than one answer. More than one answer can be there, but answer can be option only one option also, 2 option, 3 option or 4 option. Is it okay? Yes. sir. So multiple में one is correct ना? Any one. One or more ना? One or more. Yeah, one or more. कितना मेहनत लगता है। Could we go to the last? Yeah. एक Go to the मिनट। last. I think I missed copying one thing. ये this one ये तो नहीं सर, वो ठीक है ना? नहीं, not this, the previous one. ठीक है। One second. हाँ, yeah, now it's ठीक है. चलू। Yeah. आपने देखा होगा कि कितना हम लोग एक समय कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, बड़े फायदा है। We are not here to do fat out all the sums. So majority of this, we are here to understand concept. Does that make sense?
Yes. sir. इतने अच्छी प्रॉब्लम है, आप जितना उस पर ज्यादा डूबोगे ना, जितना आप स्विम करोगे ना, उतने आप एक्सपर्ट बन जाओगे. डज इट मेक सेंस? हाँ हाँ बिल्कुल. तो जब भी आप घर पे बैठे हो प्रैक्टिस करने को और आप देखो अरे मेरे तो सिर्फ 10 ही सम हुए अभी तक, ज्यादा सम तो हुए नहीं, तो यू शुड नॉट फील बैड. व्हाई शुड नॉट फील बैड? बिकॉज यू आर स्पेंडिंग टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. डज इट मेक सेंस? Yes, sir. Work on quality sums. You are not here to do many sums. Quantity. Just work on the quality. is better than quantity. अरे वाह वाह. चलो मैं टाइम पास कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं. हाँ सर, चलिए सर. F is monotonically increasing. Okay. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन को उठा लेते हैं. आपका फंक्शन क्या है? फंक्शन है 1/x से लेकर x तक e raised to minus of t plus 1/t. This is upon t by the way, upon t dt. अब देखो, अगर हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे ना, तो डेरिवेटिव तो लेना पड़ता है. डज इट मेक सेंस? अरे हाँ ना. हाँ If the derivative is greater than 0, then the function is increasing, and if the derivative is less than the function decreasing. Do you agree? Yeah, I agree. चलो अच्छी बात है. So let me take a derivative of dash of x. तो पहले हम t के बदले x लिखेंगे. हाँ इंटू x का डेरिवेटिव चलेगा. हाँ चलेगा. माइनस, फिर हम t के बदले 1/x लिखेंगे, हाँ और फिर 1/x का डेरिवेटिव चलेगा. बिल्कुल. ऑडियंस, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. We are just doing Leibniz. So. या क्रिश समझे ना? क्रिश मेहता. Yes, sir. Yeah. कूल. अब क्या होगा देख लेते हैं. यहाँ पर हम खाली लिबनिट्ज ही कर रहे थे बाय द वे. तो यहां मुझे मिलेगा e raised to minus of x plus 1/x upon x. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यू गेट e raised to minus x plus 1/x upon x. On X, yeah. 2. ये क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया. इज इट ओके? अरे ये तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देखो आपका x किसके बीच में? 0 to infinity है, चेक कर लो. x किसके बीच? 0 to infinity ना. Yeah. तो एक न्यूमरेटर एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है. डू यू एग्री? अरे हाँ, Sir, yeah. Yes, sir. ये भी पॉजिटिव है. डू यू एग्री? Yeah, I agree. डेरिवेटिव पॉजिटिव. डू यू एग्री? Exponential raised to हाँ, negative हाँ. है ना, तो फिर आर्यन, all exponential is positive ना. ऑब्वियसली आर्यन. हाँ सर. आर्यन, Yeah. क्या डाउट है तेरे को? बता मेरे को. So exponential raised to negative is positive always now. I'm asking that. नहीं नहीं, यू हैव टू टेल मी आर्यन. चलो, So I can't figure out why. you have to figure out like this because this is a curve of e raised to minus x. हाँ It's always above x axis. हाँ. तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. Okay, so understood. ठीक है ना? Yeah. ठीक है. ओके, तो किड्स ये पॉजिटिव हो गया, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या हो गया? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increasing. इंक्रीजिंग. Increasing. डज दैट मेक सेंस? Yes. Yes, sir. वेरी नाइस. आगे बात करते हैं ऑप्शन से. तो ऑप्शन डी तो है, बी तो है नहीं. ऑप्शन सी के एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, एफ ऑफ 1/x भी करते हैं. तो लेट्स डू इट हियर ओनली रादर. चलो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x. सी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, जो है 1/x to x e raised to minus of t plus 1/t. नीचे है t dt. जबकि f of 1/x में क्या होगा? मैं यहां पर x लिखूंगा, यहां पर उल्टा लिखूंगा. डज दैट मेक सेंस? Sir. डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. तो Okay. just minus हो जाएगा तो. ये उल्टा लिखिएगा तो माइनस हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो अगर मैंने इसको उल्टा लिखा तो ये माइनस हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. कैसे दिस बिकम 0? डू यू एग्री? Yeah. अरे हाँ के नहीं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इज इट ओके? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. अब बोला एफ ऑफ 2 raised to x इज एन ऑड फंक्शन. तो ठीक है, काम करते हैं. On R means for all real number ना. या ऑन ऑल रियल नंबर.
तो मैं पहले f of x लिखता हूँ. What is f of x sir, by the way? f of x is क्या है f of x? 1 by x x1 to by 1 by x to x e raised to minus of t plus 1 by t upon t dt. ठीक है ना? चलो अब किसी काम करते हैं. उन्होंने क्या बोला है, हमको पता करना है कि f of 2 raised to x ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन. हाँ के नहीं? अरे हाँ के नहीं? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. तो एक काम करते, लेट मी कॉल दिस है g of x. चलेगा? अरे चलेगा? अरे कहाँ गए लोग? Yes, Yes, sir. सॉरी सर, मेरा म्यूट हो गया था सर. हाँ, मेरे ठीक को है. हाँ बोल रहा था पर. हाँ ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x के बदले 2 raised to x लिखूंगा. ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 raised to minus x, यहाँ पर आ जाएगा 2 raised to x, यहाँ पर e raised to minus of t plus 1 by t upon t dt. मैंने x के बदले क्या लिखा है, 2 raised to x. Does that make sense? Makes sense. Likewise, now do one thing. Replace x with minus x. If I replace x with minus x, I'll get 2 raised to x here and 2 raised to minus x here. Do you agree? Yes, sir. Now, if I write it ulta, can I take the minus sign out? तो ये हो गया उल्टा हो जाएगा. 2 raised to minus x, ये 2 raised to x. चलेगा? चलेगा सर. therefore odd function. So is it an odd के even? Odd. Of course, this guy is g of x. So g of minus x is equal to minus of g of x. Does that make sense? Yes, Yes, sir. sir. So odd के even. Odd. Therefore, I can say g of x is an odd function. Is it clear? Yes. Sir. चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. So how many more questions are you going to do? 14, 15, Total 19 है sir. 16, 17 है. 17. हाँ क्यों, क्या वो भूख लगेगी तेरे को? क्या भूख लग गई? नहीं, मम्मी बोल रही थी खाना खाने के लिए. इसलिए. हाँ यार, मुझे भूख लगी. मेरी मम्मी मुझे बुला रही खाना खाने के लिए. ठीक है, मैं थोड़ा जितना करता हूँ, मुझे 10-15 मिनट करने दे, फिर हो सके. सर एक स्लाइड पीछे जाना ना प्लीज. एक सेकंड. हाँ डन सर. ठीक है, चले आगे. Sir. ठीक है. हाँ चलिए सर. The options with the values of A and L that satisfy the following equations. कुछ तो उन्होंने बोला है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पर क्या होता है. सबसे पहले किस मैंने काम करता हूं, मैं ऊपर वाले के बारे में डिस्कस करता हूं. ऊपर वाले के बारे में 0 to 4 pi, यह है e raised to t sin of 6at plus cos of क्या है 4at dt. ओके, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, कुछ मिस्टेक ना हो. एक क्वेश्चन है, एक मिनट. ठीक है. So what is L, sir? क्या हुआ, व्हाट इज L? एक मिनट, लेट मी चेक व्हाट इज L. एक क्वेश्चन में क्या, ओके एक मिनट. Maybe L is the This is Value L. of the of these two. Yeah, this is L. Yeah, एक मिनट. Yeah, this is L. Is it clear? अच्छा, okay. Yes. ये पूरा प्रॉब्लम वो L है. Is it clear? हाँ सर. हाँ ओके. क्या चालू करूं मैं? अरे चालू करूं क्या? हाँ सर. ओके, तो चालू करते हैं. चलो बिल्कुल. सबसे पहले काम करते हैं कि हम लोग ना थोड़ा सा, लेट्स से ए, मैं ए को सपोज 2 ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा बता दो मुझे. अगर मैंने ए को 2 लिया तो मुझे मिलेगा 2t, राइट? है ना, 2t है, यहाँ पर भी 2t आ जाएगा. इज इट ओके? यस सर. है ना, मैं ए को यहाँ पर 2 ले रहा हूँ. ठीक है.
ओके तो चलो लेट मी जस्ट डू इट। A2 या A4 भी लेता हूं मैं, चलो मैं A2 लेके करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसका ऊपर वाले का वैल्यू पता करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूं सपोज I2 और नीचे वाले को मैं I1 बोल के रखता हूं, फिर हम लोग उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ऊपर वाला सपोज I2 है, नीचे वाला I1 है, और देखते हैं यहां पर आंसर क्या आता है। एक मिनट, या I2 0 to 4 पाई है, मैं e रेस टू टी इसको लिख के रखता हूं, यहां पर साइन रेस टू 680 प्लस 6 है कि 4 है, या 480, हाँ ठीक है 480 dt। अब मैं किसी काम करता हूं मैं, यहां पर लिमिट 0 टू पाई है ना, तो मैं can I 0 to 4 pi, 0 to pi, 0 to 2 pi, 0 to pi, can I break it into what? Can I discuss 0 to pi, pi to 2 pi, 2 pi to 3 pi, and 3 pi to 4 pi. Do you agree, kids? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला वाला will be same as the denominator. Do you agree? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट पाई से 2 पाई के बीच में, ओके। और ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ईट ई रेस टू टी, याद कर लो ई रेस टू टी, ओके ठीक है। इट इज ई रेस टू टी, वो क्या था? Sin of 6, sin raised Sin to of 680 680 plus cos raised to 480 dt. 480. Okay, now let's try solving this problem. एक काम करता हूँ kids, I will try getting the limit between 0 to pi here. I will try getting limit between 0 to pi. तो काम करता हूँ मैं, let me put t as pi, एक मिनट, pi plus x. I have put t as pi plus x. Can I put t as pi plus x? मैं तो कुछ भी पुट कर सकता हूँ, हाँ क्या नहीं? सर वो a equal to 2 अभी नहीं कर रहे ना? हाँ, वो तो 2 लेंगे 4 भी लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। ओके सर। ओके, अब अगर मैंने t को pi plus x किया, तो अगर मैंने डेरिवेटिव लिया तो dt will become dx. Do you agree? Yes. हाँ, I agree. तो क्या मिलेगा ध्यान से देखना, अगर आपका t pi है, pi कैंसिल, तो x आपका 0 हो जाएगा। Do you agree? I agree. अगर t 2 pi है तो x will become pi. Do you agree? Yes, sir. Equal. And in place of t, I can write pi plus x, and here what I'll get is sine of raised to 6. In place of t, I'll write pi plus x. चलेगा? हाँ चलेगा। मैं a को t ले लूं या a को 4 ले लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने a को 2 ले लिया सपोज, तो मेरा t क्या, what is t? Pi plus x. Is it okay? Yes, sir. Similarly, this will be cos raised to 4. मैंने a को I'm taking 2 and t is pi plus x. Hey audience, getting me? Yes, sir. Yes, sir. मैं 4 भी लूंगा तो कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि kids, this is e raised to pi, this is e raised to x. Okay kids, this will be 2 pi plus 2x. Do you agree? अरे हाँ बोलो ना यार। हाँ, sir. And 2 pi plus theta, sin of 2 pi plus theta is sin theta only. Do you agree? Yes sir. I agree. Okay, sin is to 6, 2x. Do you agree? सर दोनों I में सेम ही agree. होगा sin cos. Again, cos is to 4, 2x. Do you agree? बिल्कुल। And this e raised to pi will come out, and I think you will agree with me. This guy is none other than your I1. हाँ। अरे मैं a को 4 लूंगा तो भी सेम होगा. Do you agree? हाँ सर। तो इसको मैं I1 बोल सकता हूँ क्या? Yes sir. So what I have got here is that the second guy, okay, so I'll just tell you what will happen. Second guy gave me e raised to pi I1, okay. I'll just write the final answer here so you understand what is happening. Okay. Just check it out. नीचे, okay, I'll just write it down here. Okay, नीचे is nothing but, you know, अगर आप चेक करोगे नीचे क्या आपका कोई भी इंटीग्रल है, जो भी है वो सेम टर्म है, I1 है, सपोज नीचे I1 है, जबकि ऊपर यहां I1 है, पर यहां पर क्या मिला, e raised to pi I1. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, what I'll get is e raised to 2 pi I1. Do you agree? I agree. And then I get e raised to 3 pi I1. Do you agree? Yes, sir. Now this I1 will get cancelled. I get 1 plus e raised to pi
e raised to 2 pi, e raised to 3 pi. Do you agree? हाँ sir. Is it a GP? Yeah. Yes, sir. Is it a GP? Yes, sir. So it's a into r raised to number of terms 4, r raised to n minus 1 upon r minus 1. Is it okay? Yes sir. So finally, what is the answer? E raised to 4 pi minus 1 upon e raised to pi minus 1. Is it clear? Very clear. So the answer I get is, क्या आंसर है? Option A and C. Is it right? हाँ. A समझा क्या? हाँ सर। मुझे पता है सब वेट करे कि सर कब बोले कि हो, चलो आज के लिए इतना ही है. So, हाँ. Tell me, what do you take as I1? what is I1? Okay. Oh, Yes, sir. okay. I1 is what is 0 to pi. The same guy. Okay, yeah. तो 0 to 4 pi है ना, 0 to pi, pi to 2 pi, 2 pi to 3 pi, 3 pi to 4 pi. Is it clear? Yes, sir. So that is I1. ठीक है ना? Yes. मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हो, राम सर कब बोलेंगे कि चलो आज के लिए इतना ही काफी है ना? कब बोलोगे? चलो आगे बढ़ते हैं पहले, फिर बोलूंगा बाद में. मुझे भूख लगी यार, समझो यार तुम लोग यार. ठीक है, चलो. फंक्शन गोस फ्रॉम R to R. मस्त प्रॉब्लम है ये. F of x is a step function and x is between less than equal to 2 and अगर 0 होगा तो x greater than 2. Before I go ahead, जैसे एक छोटा नोट मैं चाहता हूं आपको पता रहे. Step of x plus some constant is always equal to step of x plus k. Please remember this. Huh? Yeah. Okay, please. K is a constant here. Is it okay? It's okay. Okay, अब एक काम करता हूं मैं. क्वेश्चन में क्या लिखा पढ़ लेते हैं. I इंटीग्रेट करना है -1 से 2 के बीच में x f of x square 2 plus f of x plus 1. Not So, f. Yeah. Say about greatest integer. क्या हुआ? Just start. You said about something about integer, greatest integer type, greatest integer one. What? This is the greatest integer, na? Step x. Yeah, you said something about it. Your voice cracked or something. Oh, no. I just spoke. No, nothing special. I just spoke about this result only. If k is a constant, then constant can come out. That's it. Yes, sir. ठीक है. अब ना किस f of x square है, ठीक है. तो मैं ना आप अगर आपका f of x square बोला है तो यहाँ पर f of x मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं अलग कलर में लिखता हूं तो आपको पता रहेगा कैसे काम कर रहा है ये. ध्यान से देखना. f of x square will be step of x square when x square is less than equal to 2 and 0 when x square greater than 2. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. Now this drops down to step of x square. So this will work when x is between -√2 to √2. Do you agree? I agree. And this is 0 when x is either less than -√2 or when x is more than √2. Do you agree? हाँ sir. अब एक काम करते हैं किड्स, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले यहां ध्यान से देखो, ये -1 से 2 है, तो हम ना f of x square क्या होगा? f of x square होगा एक्चुअली f of x square लिखता हूं पहले तो मैं, ठीक है. इसको हम लोग इंटरवल में ब्रेक करेंगे, बाद में साथ में करेंगे. इसको मैं कुछ नहीं चेंज नहीं किया मैंने. f of x plus 1 क्या होगा? x plus 1 लिखा तो यहां पर आएगा, देखो f of x plus 1. ओके, ठीक है. मैं पहले इसको इंटरवल में ब्रेक करता हूं, ठीक है, तो आपको समझेगा मैं क्या करने वाला हूं. ओके किस, मैंने इसको इंटरवल में ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखना. -1 to 0, 0 to 1, 1 to √2, और ये आगे मैं बढ़ा सकता हूं till 2 बढ़ा सकता हूं, लेकिन √2 के बाद लिखने की जरूरत है. √2 के बाद आंसर क्या होता है? 0. अगर x √2 से ज्यादा होगा तो आपका f of x square क्या होता है? 0. Do you agree? I agree. तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर क्या हो जाएगा?
0. पक्का ना? Yes. हाँ सर. अगेन आई एम सेइंग, अगर आपका √2 से मैं 2 तक लेके जाऊंगा तो √2 से ज्यादा आपका एफ ऑफ एक्स पर 0 होता है, तो न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. डू यू एग्री? Yes. Yeah. Yes, sir. So what I'm getting फिलहाल, I'm getting x -1 to 0. Who will work? F of x square will be step of x square. Is it okay? Is it okay? Yes. And यहाँ पर I can write this as f of x plus 1. F of x plus 1 will be देखो f of x is step x है ना? अरे f of x is step x ना, तो यहाँ पर आएगा step x plus 1. Do you agree? Yes, sir. Krish Mehta, is it okay? Yes, sir. So, Slowly. Yeah, हाँ बोल. but for f of x, Yeah. x is for f of x, तो x is less than or greater than 2 के लिए आएगा ना? Oh, sorry. Less than equal to 2 के लिए है ना? हाँ, I read it. Sorry. ठीक है ना? Yes, sir. x less than 1 हो जाएगा, चलेगा ना? Yeah. 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 ठीक है, आगे वापस से x स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर. मैं पहले सब लिख रहा हूं आप लोग के आपके एक मिनट या प्लस नेक्स्ट मैं यहां पर भी लिख रहा हूं एवरीथिंग सेम थिंग आई एम राइटिंग. ओके, सो दैट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. क्या ड्रामा है यार. इंटीग्रेशन 1 to √2, यहां पर है 2 plus this. Now let's go ahead. Okay kids, now see, observe here. चलो, सबसे पहले -1 और 0 के बीच में स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 0. डू यू एग्री? Yes. Yes, Yes. sir. अगर आपका x का वैल्यू -1 और 1 के -1 और 0 के बीच में है, then x square will be between 0 to 1. Do you agree? And if x square is between 0 to 1, the step will be what? 0. Do you agree? Yes, sir. Yeah. Similarly, if x is between 0 to 1, then x square is between 0 to 1. Do you agree? I agree. Again, step will be 0. Do you agree? Yes. Yes, sir. Yes. Next. I agree. If x is between 1 to √2, then x square will be between 1 to 2. Do you agree? Yes, sir. Okay, इसको मैं बाद में करता हूँ. ठीक है, इसको मैं बाद में करता हूँ. पहले मैं नीचे वाले को I शिफ्ट कर agree. लेता हूँ. I can this is step of x plus 1. Is it okay? Plus 3. Is it okay? Yes, sir. So what do I get here is 1 to 2 x into step of x square. नीचे आएगा 3 plus step of x. Is it okay? It's okay. Okay. Hey, 1 to 2 नहीं है क्या है वो? 2 To √2, sir. क्या 1 to √2 है? Sorry, 1 to Yes, sir. √2, sir. Yeah, 1 to √2. Yeah. Now let's finish it off. If x is between 1 to √2, then x square between 1 to 2. So step of x square will be 1. Do you agree? This will be 1. Yeah. Similarly, if x is between 1 to √2, step of x will be 1. Do you agree? Yes. Yeah. So finally, the problem reduces to X by 4. मस्त problem था ना? Yeah. X square by 2 from 1 to √2. So I'll put the upper limit, that is 2 by 2. Lower limit will be 1 by 2. So it's 1 by 4. This is 1 1 by, by this will be 1 by 8. Is it okay? Now what they are asking us? Yeah. 4i minus 1. 4i minus 1. 4i minus 1. I hope it is right. Yeah, 4i minus 1. So 4 into I is 1 by 8 minus 1. So answer is 1 by 2 minus 1. So the answer is minus 0.5. Is it okay, kids? Yes, sir. तो आंसर इज माइनस 0.5. चलेगा? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है. देखो ये भी हो गया हमारा. ओके, आई थिंक नेक्स्ट सम, आई थिंक काफी टाइम हो गया यार. कितना बाकी है? 16, Sir, 3 sum है, sir. 18. 3 नहीं 4 है, sir. कॉम्प्रिहेंशन तो इजी है कंपैरेटिवली. ओके, ठीक है. देखो अभी आपका टेस्ट तो वेडनेसडे को है ना किड्स? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं कोशिश करता हूँ अगर हो सके तो मैं आपको